Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this session we will have a discussion on the general aptitude which has been asked in the 7th February forenoon session in all these branches. ठीक है, ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. टोटल क्वेश्चंस वर 10. ठीक है, टिल नाउ वी हैड अ डिस्कशन ऑन द 6 क्वेश्चंस और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग 4 क्वेश्चन. ठीक है, सो ऑल्दो ऑल दीज क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड ओनली, सो लैंग्वेज थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. So let's have a discussion on the first question. So when you want to go with this one, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इंग्लिश का क्वेश्चन है. This was the question number 2. So the question is exacerbate and mitigate. Okay, the relation whatever we are having between these two, we need to find out कि इन दोनों में जो options available है उनमें भी same relation होना चाहिए. This is a simple question of analogy, जिसको हम बोलते हैं word analogy. ठीक है. So the relation, first of all, let's understand what is the meaning of exacerbate. Okay, exacerbate we can say. This is nothing but to make something worse. I'm writing here the meaning of this word exacerbate is nothing but, okay, okay, exacerbate is nothing but to make something worse. Yeah, something which is already worse. ठीक है, कुछ ऐसा जो कि worse हो, बहुत ही बेकार सा हो, बद से बदतर वाला condition we can say worse. And I will talk about the mitigate. ठीक है, the mitigate is antonym of this one. Exhibit is nothing but to make worse, या to make something worse, and this is to make something less serious या less severe. ठीक है, so to make something less serious या less severe. ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. So we need to find out the same here. So first of all, the word aggravate. Aggravate is also related to the same exhibit. Okay, it is having to make something worse. So this is also aggravate is also, okay. The meaning of aggravate is also to make something worse. तो ये word तो ठीक है. अब इसके साथ क्या आने वाला है? इसके साथ precipitate आएगा या फिर elevate आएगा, precipitate या फिर elevate या फिर क्या आने वाला? Let's check it out here. So when we will go, the actual correct option is nothing but this one only, because aggravate is again to make something worse. ठीक है, and elevate is to या फिर something not so bad, जिसको हम इसका opposite बोल सकते हैं, we can say, which is to make something less strong या less bad. ठीक है, we can use this word. तो यहाँ हो जाएगा to make something less bad. ठीक है, या फिर less strong या less वर्स. ठीक है, कुछ भी आप इसके जगह वर्ड यूज कर सकते हैं. सो okay, and this is again make worse. So I think the correct answer should be this option only, which is talking about the same to same, because these are nothing but antonym of each other. ये क्या है? ये antonym है. And same relation here also we are having. ये वो है aggravate जो किसी चीज को बहुत बेकार कर देता है, बदतर कर देता है, वर्स बना देता है. Here एलिवेट नॉट सो मेकिंग बेड, है ना, बहुत ज्यादा बेड नहीं बनाता है, बहुत ज्यादा बेकार नहीं करता है. सो दिस इज अपोजिट टू ईच अदर. वेल, व्हाइल आई विल टॉक अबाउट हियर एलिवेट, समझ में आ गया. एक वर्ड और आपको यहाँ दिख रहा है ए और डी ऑप्शन में, विच इज टॉकिंग अबाउट प्रेसिपिटेट. ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कॉज सडनली, मतलब कोई ऐसी स्पेशली द बैड हैपनिंग जो क्या हो, ऑल ऑफ सडन हो जाए या अर्ली हो जाए. सो वी कैन से दिस इज कॉज सडनली. इसका मीनिंग भी मैं आपको समझा देती हूँ. When I will talk about ये एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, इमेंसिपेट और एक्सोर्नेट. ठीक, इमेंसिपेट बहुत कॉमन वर्ड है जो हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया. इमेंसिपेट मींस इट इज नथिंग बट टू रिलीव समवन फ्रॉम द स्लेवरी, है ना. हमने पढ़ा था एग्जांपल, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. तो द सेम थिंग हियर वी कैन यूज. द इमेंसिपेट इज द सेम वर्ड, टू रिलीव समवन, टू रिलीज समवन फ्रॉम द स्लेवरी. while the exonerate is nothing but, ठीक है, टू क्लियर द ब्लेम, मतलब किसी को ब्लेम से मुक्त करना, क्लियर करना. दैट इज दिस वर्ड. तो ये भी, ये दोनों सिनोनिम्स बन रहे हैं, बट दीज आर नॉट सो एग्जैक्टली एंटोनियम. तो एंटोनियम कहाँ है? ओनली इन दिस ऑप्शन. सो दिस शुड बी द आंसर, एक्सर्वेट एंड एलिवेट. ऑलराइट, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड विच वी आर हैविंग हियर, which is talking about consider an next question, sorry, consider an art gallery whose walkways are shown as lines in the diagram. The black dots represent junctions where two walkways meet. Okay, a guard may be placed at junction to watch over the walkways connected to that junction. What is the minimum number of guards required to watch all the walkways? ठीक है, minimum number of guards कितने चाहिए so that वो सारे walkways पे ध्यान दे. So the very important thing we can understand, यहाँ पे आपके पास ये junctions है.
तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्लेस द गार्ड्स एट द जंक्शंस ओनली। आपको गार्ड्स को जंक्शंस पे ही रखना है। जंक्शन मतलब जहां पे दो रोड मिल रही है, यहाँ पे दो वॉकवेज मिल रहे हैं। इफ यू विल पुट हियर, आपके पास कितने जंक्शन है, यू कैन सी फर्स्ट इज इन द फ्रंट, फिर यहाँ दो मिडिल में और फिर दो लास्ट में जंक्शन है। इफ यू विल गो विद दिस वन, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे किसी गार्ड को बिठाया, ठीक है, तो गार्ड विल टेक केयर ऑफ दिस वन एंड दिस वन, लेकिन वो आगे की चीजों का ध्यान नहीं रख सकता। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे हम गार्ड को बिठा सकते हैं। बट इफ आई विल यूज, ओके, अगर मैंने गार्ड को इन दोनों में से किसी भी प्लेस पे और इवन दोनों प्लेसेस पे बिठाया, विच इज कॉल्ड द मिडिल पॉइंट, ठीक है, अगर मैंने ये मिडिल जो जंक्शन से यहाँ पे अगर गार्ड को बिठाया या फिक्स किया, तो आई कैन सी द गार्ड विल टेक केयर ऑफ दिस वन एज वेल दिस वन। वो इधर वाले वॉक पे और इधर वाले वॉक पे दोनों का ध्यान रखेगा। सिमिलरली दिस ऑल्सो विल टेक केयर ऑफ दिस वन एंड दिस वन, दोनों वॉकवेज का ध्यान रखेगा। बात समझ में आई? बट दिक्कत है कि मैम ये वाला गार्ड है और ये वाला गार्ड ना इस वॉकवे पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। सो आई नीड टू गो विद वन मोर, एटलीस्ट मुझे एक गार्ड और चाहिए होगा, सो दैट ये जो रिमेनिंग प्लेस है इसका भी आप टेक केयर कर सको। तो दिस इज योर फर्स्ट गार्ड पोजीशन G1। यहाँ सेकंड गार्ड आ सकता है। थर्ड गार्ड या तो आप यहाँ रख सकते हो या फिर यहाँ रख सकते हो। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग वन गार्ड हियर, तो ये इस और इस प्लेस दोनों का ध्यान रख लेगा। इफ यू आर पुटिंग वन गार्ड हियर, वो इस प्लेस और इस प्लेस दोनों का ध्यान रख लेगा। तो दिस इज योर चॉइस। उसने हमसे पोजीशन नहीं पूछी, उसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ गार्ड्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ गार्ड्स शुड बी 1, 2 एंड 3। इन दोनों में से कहीं पे भी आ जाए, तो 2 इन द मिडिल while 1 in the last or the bottom में से कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। so the minimum number of guards we required here should be 3। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 3 बेटा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक अच्छा क्वेश्चन, ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में क्या हुआ, कैसे सॉल्व होगा। लेट्स हैव अ डिस्कशन हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर अप्रोच करेंगे। टॉकिंग अबाउट सर्किल C1, C2, C3, वी आर हैविंग दीज सर्किल्स विद सेंटर O1, O2 एंड O3। दिख रहा है, ये सेंटर O1 है, ये O2 है, ये O3 है। ठीक है, विद द रेडियस R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली टचेज ईच रेडियस। R1 की वैल्यू कितनी दी है आपको? हियर इट इज गिवन टू यू द वैल्यू ऑफ R1 इज 2 सेंटीमीटर। ये 2 है तो ये भी R1 है, ये भी 2 होगा। ठीक है, ये R2 है, R2 इज 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास क्या है? दिस इज ऑल्सो R2, दिस विल बी ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी के लिए बनाया है। एंगल O1, O3, O2, कौन सा? O1, O3, O2, ये वाला एंगल 90 डिग्री है आपके पास। दिस एंगल इज अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, चलो अब सबसे पहले व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट, आई थिंक ये थोड़ा सा मूव हो गया है मेरे हैंड से, स्टिल वी कैन मेक इट लाइक दिस। यहाँ पे एक 90 डिग्री जो आपके पास ट्राइंगल है, दिस इज नथिंग बट योर राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है। तो दिस O1, O3 एंड O2 इज नथिंग बट योर राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है बेटा? आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल और फिर यहाँ ट्राइंगल है तो उसको हटा दिया जाए, दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में वी नो वेरी वेल 3 चीजें होती है, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो दिस O1, O2 विल बी योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मैम अगर ये R1 है तो ये भी R1 है, मतलब ये भी 2, और ये 1 है तो ये भी 1, ये भी तो रेडियस ही आ रहा है। तो लेट्स कैलकुलेट हियर द साइड्स। ठीक है, फिर आगे की बात हम करेंगे। तो लेट्स गो विद दिस साइड। क्या? O1, O2 जो आ रहा है, इस साइड की लेंथ ले ले। O1, O2 विल बी नथिंग बट 2 + 1, 3 ओनली। दिख रहा है सभी को? If I will go with O1, O3, O1, O3 will be nothing but R1 plus R3। R1 की वैल्यू 2 आपके पास है, R3 रिमेन R3 ओनली, 2 + R3। और अगर मैं O2, O3 की बात करूं तो O2, O3 ये है R2 और ये है R3। इट शुड बी R2 + R3। R2 की वैल्यू 1 है और ये रहा R3। Now what I am having here O1, O2, O3, O1 और O2, O3, इन तीनों का यूज करके हम सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज आस्किंग। तो सॉरी, आई विल गो हियर विद दिस वन। कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे यहाँ पे, किसके साथ? इन राइट एंगल ट्राइंगल O1, O3, O2। ठीक है, आई कैन यूज द सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो O1, O2 आपका हाइपोटेन्यूज हुआ। सो O1, O2 स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर O2, O3 स्क्वायर प्लस O3, O1 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी? 3 थी, तो 3 स्क्वायर। हियर वी कैन पुट द वैल्यू 2 + R3 और 1 + R3। तो यहाँ रख सकते हो 2 + R3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 + R3 स्क्वायर। ठीक है,
All right, we can go with this one. Okay, so after that we can write down 3 square is nothing but 9. When we will open it, a square 4 plus 4r3 plus r3 square. This will be 1 plus 2r3 plus r3 square. थोड़ा सा ये हैंग जैसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 है. लेट्स मेक इट सिंपल. r3 कितना हो गया, 2r3 स्क्वायर. ये बन रहा है 4 और 2 6r3. 4 प्लस 1 5. इस 9 को इधर ले आओ, -9 इक्वल्स टू 0. ठीक है, आई कैन राइट डाउन अगेन. एक और चीज यहाँ लिख सकते हो, विच इज 2r3 स्क्वायर प्लस 6r3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ से आप 2 को भी रिमूव कर सकते हो, थोड़ा और आसान बना सकते हो. एंड यू विल रिमूव द 2, तो इट शुड बी r3 स्क्वायर प्लस 3r3 और -4. 4 तो था ऑलरेडी, तो -2 यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0. तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स आपको निकालने हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू फ्रॉम द यूनिवर्स, मुझे 2 ऐसे रूट देखने हैं जिसको प्रोडक्ट कराने पे तो -2 आए और प्लस या माइनस कराने पे +3 आ जाए. बट आई डोंट थिंक आई कैन गेट -2 और +3, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट कराओगे तो -2 इंटू 1 कराओगे. ठीक है, तो -2 इंटू 1 में आपको -1 मिलेगा बट +3 नहीं मिल रहा है. What you can do, we can find out the roots here using the Sridharacharya. So Sridharacharya का यूज करेंगे, which says -b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. ठीक है, यूजिंग दिस वन वी कैन फाइंड आउट द रूट्स. एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो वेरी वेल द रेडियस मस्ट बी पॉजिटिव. तो वैसे या नेगेटिव रूट लेना ही नहीं चाहिए आपको, डायरेक्टली यू शुड राइट डाउन द पॉजिटिव रूट. When I will write down the value of r3, which the question is asking to me, -b means -3 plus minus root of b square means 9 minus 4a is 1, c is -2 divided by 2. When we will solve -3 plus minus root of 9 plus 8 is nothing but 17. इसको थोड़ा छोटा बना दिया जाए, डिवाइडेड बाय 2. वी नो वेरी वेल, अगर ऑप्शन में ये लिखा होता तो शायद आप आंसर लिख देते, बट क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज द रेडियस शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना. तो नेगेटिव रूट नहीं लिया जाएगा. सो रेडियस r3 शुड बी पॉजिटिव. माय आंसर शुड बी -3 प्लस रूट ऑफ 17 बाय 2. और आई थिंक ये एक ऑप्शन में अवेलेबल है. वी कैन चेक इट आउट. We can check it out the options. -3 plus root of 17 by 2. Yes, here it is available. So this should be my answer, which is talking about C option. Option देखो fluctuate हो सकते हैं, but answer यही है, -3 plus root 7 by 2. ठीक है, I hope you can understand. If you are looking for GATE 2026 all the video solutions, तो you can visit our website. जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, even on the home page, ठीक है, you can see here on the home page only. Here the GATE 2026 पेपर सोल्यूशन अवेलेबल. वंस यू विल क्लिक दिस वन, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेपर सोल्यूशन यहाँ आपको दिखाई देंगे. इवन आफ्टर द एवरी वीडियो, पहले वीडियो सोल्यूशन और उसके नीचे आपको डाउनलोड द पीडीएफ. तो यू आर हैविंग द ऑप्शन टू डाउनलोड द पीडीएफ एज वेल. तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ देम एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ. लेट अस अज्यूम मुझे यहाँ इसको डाउनलोड करना है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस वन. जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ आपको दिखाई देगी. इट विल ओपन लाइक दिस. हियर यू कैन सी द 13 पेजेस पीडीएफ इज अवेलेबल फॉर यू. ठीक है, जहां इस पीडीएफ में हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस इसी सब्जेक्ट के, इसी ब्रांच के रिमेनिंग क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के डिस्कस किए थे. आई होप यू गाइस रिमेंबर. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है. यू गाइस कैन चेक इट आउट. यहाँ हमने आई थिंक कितने क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 4 मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए. ये पीडीएफ भी आपको यही मिलने वाली है ऑन आवर वेबसाइट ओनली. ठीक है, तो वंस यू विल गो बैक, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा वीडियो सोल्यूशन और उसी के नीचे पीडीएफ का. इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर GATE 2027 और 2028 प्रिपरेशन, then you can join our Arjuna batch for engineering maths and general aptitude. मैथ्स और एप्टीट्यूड में बहुत शानदार तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, if you want to score maximum in maths and aptitude in the upcoming GATE exam 27-28, then surely you can join our Arjuna batch. ये हर एक ब्रांच के लिए, no matter whatever is your branch, no matter whatever is your medium, whether you are from the north, south, east, west, आप कहीं से भी हैं, very easily you can understand each and every line of this Arjuna batch. ठीक है, यहाँ बहुत easily आप सब चीजें समझ पाओगे. Here you will get the comprehensive course of engineering maths and general aptitude. Once you will click here, this course page will be there. Okay, price इसका 3999, which is across all the branches. सभी branches के लिए है. If you are from the if you are from the any of the medium, the batch is in bilingual, so very easily you can understand this one. We are going to start the new batch, of engineering maths and general aptitude, new Arjuna batch 2.0. We are going to start from the 25th February. So you guys can join it, before the 25th February even.
हियर वी आर हैविंग डेडिकेटेड बैच फॉर द डीए एज वेल, तो यहाँ सिर्फ डेडिकेटेड डीए की बात की जाएगी. इफ यू आर लुकिंग फॉर गेट एंड ईएससी बोथ देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स. ठीक है, हियर वी आर हैविंग डेडिकेटेड इन द इंग्लिश. इसके अलावा आपके पास यहाँ सिंपल बैचेस भी है जहाँ पे सिर्फ मैथ्स और सिर्फ एप्टीट्यूड भी अवेलेबल है. ओके, so yeah, if you will go for, if you are from ECEEIN, then you can go for our Impulse batch as well as the Lakshya batch. Lakshya batch हमारा कैसा है, हाइब्रिड बैच है. Impulse इज ए रिकॉर्डेड बैच. यहाँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड मैनर में मिलेगा. अर्जुना बैच इज ऑल्सो हाइब्रिड बैच जहाँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड मैनर में आपको मिलने वाला है पूरा पूरा मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. ओके, फॉर एनी डिटेल यू कैन जस्ट फील फ्री टू रीच मी थ्रू दिस नंबर. आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड कोर्सेज और द ECEEIN courses. Right, guys? Thank you.